Hello class 4, welcome in SST class. Student, today I will start the next point of the life in the region, that is the West Bengal. And previously we have read about the life in the region in Punjab and Haryana. Punjab is known as the land of five rivers, that is the Jhelum, Ravi, Vyas, Satluj and Chenab. And is the farming is the main occupation, and Haryana is the neighboring state. And both state Punjab and Haryana is one capital is Chandigarh, and the golden temple in Amritsar is the famous for all over world. And leather craft, especially the jutis of soft leather shoes, is unique product of the Punjab. And Baisakhi, Gurpurab, Lohri, the main festival in the Punjab. And Ludhiana is the famous for hosiery and woolen garments. Gurgaon in Haryana is the well known for the automobile furniture. Manufacturing. Delhi, in Delhi section we read about that Delhi has been a traditional capital of India, but nowadays New Delhi is the capital of India, and this city stands in the triangle formed by the river Yamuna and east, and the supports from the Aravalli range in the west and south. Delhi is not in the largest commercial state center for the northern India, but also the largest center for the small industries. And some major festivals, all the major festivals are celebrated in this city, and the famous monuments like Lotus Temple, India Gate, Akshardham Temple, Jantar Mantar, Red Fort, Qutub Minar and Humayun's town is situated near. And Aravalli are the oldest mountain range in India. In Uttar Pradesh we read about the Uttar Pradesh capital is Lucknow, and it is the highest population in the India. The Ganga and the some tributaries like Yamuna and Gomti etc. flow through in the state. And wheat, oilseed, sugar cane are main crops. And famous cities like Allahabad, Kanpur, Mathura, Noida, Agra, Lucknow and Banaras. So today topic is West Bengal. So student, open the page number 30 and come on West Bengal. West Bengal is in East India. Its capital Kolkata is situated on the bank of river Hooghly. The climate is hot and humid. The main occupation is agriculture. Rice and jute are the main crops. The people celebrate Durga Puja with great fanfare. The main language is the Bengali. Rice and fish is the staple diet, while Rasgulla and Sandesh are the famous sweets. Rabindra Setu or Howrah Bridge is the famous landmark of Kolkata. So students, some important point which is related to the West Bengal, that is the West Bengal situated in East India. जो आपका West Bengal है वो इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है, और इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि आपकी हुगली नदी पे सिचुएटेड है. हुगली रिवर और हुगली नदी. क्लाइमेट जो यहाँ का है वो हॉट और ह्यूमिड मीन्स गर्म और आर्द्र भरा है, और मेन ऑक्यूपेशन जो यहाँ का मेन काम है वो है एग्रीकल्चर मीन्स कृषि. मेन क्रॉप्स जो मेन यहाँ का अनाज है जो बोया जाता है, जिसकी वजह से जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा होता है वो है राइस एंड जूट. मेन फेस्टिवल मीन्स वेस्ट बंगाल, वैसे दुर्गा पूजा पूरे ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है, बट जो मेन फेस्टिवल है वो है आपका दुर्गा पूजा. आपको याद है हम लोगों ने दुर्गा पूजा और कहाँ का मेन फेस्टिवल पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुल्लू में. कुल्लू का जो दशहरा है वहां का ये फेमस है, और ये मेन फेस्टिवल भी है आपके वेस्ट बंगाल का. मेन लैंग्वेज जो यहाँ की है वो है बंगाली, एंड फेमस स्वीट्स रसगुल्ला एंड संदेश. और रविंद्र सेतु, आज जिसे हावड़ा ब्रिज भी पुराने समय में कहते थे, अर्लियर नेम हावड़ा ब्रिज और नाउ रविंद्र सेतु इज फेमस लैंडमार्क ऑफ कोलकाता. मीन्स ये पहचान है कोलकाता की. और भी फेमस चीजें हैं कोलकाता से रिलेटेड, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी वेस्ट बंगाल से हैं. तो ये चीजें हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं. वेस्ट बंगाल ये आपके इंडिया के ईस्ट में है सिचुएटेड, और इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हावड़ा ब्रिज पे, हावड़ा नदी के पे सिचुएटेड है.
यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है. मेन ऑक्यूपेशन इज द एग्रीकल्चर एंड द मेन क्रॉप्स राइस एंड जूट. मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा. मेन लैंग्वेज इज बंगाली and the famous sweets is rasgulla and sandesh, and the Howrah Bridge is the landmark of the Kolkata or Rabindra Setu. Next is Bihar. So student, next Bihar. Bihar is also in East India. Bihar भी East India में इंडिया के ईस्ट में है. मीन्स इधर इस साइड में ईस्ट में है, और आपका कोलकाता भी ईस्ट में है. देन छठ पूजा, होली, दशहरा, दिवाली एंड तीज आर मेजर फेस्टिवल. जो बड़े त्योहार है वो यहाँ के हैं दिवाली, दशहरा, होली, छठ पूजा एंड तीज. जिसमें से छठ पूजा तो सबसे ज्यादा ये इसको कह सकते हैं सिंबल है वहां का इस फेस्टिवल का. देन मैन वियर धोती एंड कुर्ता, वाइल वुमेन वियर साड़ी. जो यहाँ के मेन है वो धोती कुर्ता, और जो वुमेन्स हैं वो साड़ी पहनती हैं. अबाउट हाफ ऑफ लैंड एरिया बिहार इज अंडर कल्टीवेशन. खिचड़ी, लिट्टी चोखा आर मेन डिश. जो यहाँ का मेन डिश है वो है लिट्टी चोखा एंड खिचड़ी. सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर रिलेटेड टू बिहार. दैट इज बिहार इज द इन ईस्ट इंडिया. भारत के ईस्ट में ये सिचुएटेड है, और इसकी कैपिटल है पटना. जो यहाँ की राजधानी है वो है पटना. देन मेजर फेस्टिवल इज छठ पूजा, होली, दिवाली, दशहरा एंड तीज. यहाँ मैं कुछ दशहरा लिखा भाई भूल गई हूँ, आप याद कर लीजिए. दशहरा इज ऑल्सो. मैन वियर धोती एंड कुर्ता, वुमेन वियर साड़ी एंड. हाफ ऑफ द लैंड एरिया ऑफ बिहार इज कल्टीवेशन. देन मेन डिश ऑफ दिस एरिया इज खिचड़ी एंड लिट्टी चोखा, एंड कैपिटल इज पटना. So that is the important point to Bihar. And next is Tripura and Assam. So student, next is Tripura and Assam. Tripura capital is Agartala. Tripura lie in the plain of Brahmaputra. People here grow oilseed, rice, bamboo and jute. Bamboo is used for making handcraft and herbs. जो त्रिपुरा है उसकी कैपिटल आपकी है अगरतला. और ये जो त्रिपुरा जो है वो ब्रह्मपुत्र के जो एरिया है उस तरफ पूरा फैला हुआ है, एक्सटेंड है. और यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है वो है ऑयल सीड, राइस, बम्बू एंड जूट. यहाँ का मेन वो आप कह सकते हैं क्रॉप जिससे इनकी पूरी जो ऑक्यूपेशन में यूज होती है वो है आपका ऑयल सीड, राइस, बम्बू एंड जूट. और आसाम कैपिटल इज दिसपुर. एंड ब्रह्मपुत्र हैज मेड आसाम वेरी फर्टिलाइज. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसकी वजह से आसाम की जो लैंड प्लेन्स है वो काफी फर्टिलाइज होती है, जिसकी वजह से वहाँ टी प्लांटेशन काफी ग्रोइंग स्टेज में है, बहुत ही डेवलप्ड है वहाँ पे. टी प्लांटेशन इज फेमस. एंड मेन फेस्टिवल वहाँ का जो है ये है बिहू, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. मीन्स फसलों की कटाई से रिलेटेड है. ये वहाँ का मेन फेस्टिवल है. और अदर ऑक्यूपेशन जो आसाम का है वो है रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क. सिल्क जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालते हैं सिल्क के लिए, जिससे सिल्क निकाला जाता है. एंड बम्बू हैंडक्राफ्ट, और बम्बू हैंडक्राफ्ट के लिए काफी फेमस है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है त्रिपुरा एंड आसाम टू Tripura and Assam. Tripura capital is Agartala and Assam capital is Dispur. Tripura, it is lie into the place of Brahmaputra. Main crops of Tripura, that is oilseed, rice, bamboo and jute. And in Assam, Brahmaputra has made Assam very fertile. Because of reason here the tea plantation is very developed. The main festivals of Assam is Bihu, that is a harvest festival, and the other occupation of the Assam is the rearing silkworm for silk. रेशम उद्योग फेमस है वहाँ का, और bamboo handcraft is also famous for in Assam. So our chapter is complete, student. On Monday, I will provide you PDF of this exercise and question answer also. Okay. तो आपका जो होमवर्क है मैंने कल आपको दिया था एक्सरसाइजेस लर्न करने के लिए, आप उसी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर आप उसको लर्न करेंगे. तो ये आपका होमवर्क है.
homework, learn question answer of चैप्टर 1 और इस चैप्टर को फिर एक बार पढ़िएगा, सारे पॉइंट्स को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, आपको लर्न होंगी वो चीजें, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।